you can say gender as well. So basic problem is that the clients who are in you can say like UK, US, Germany, Canada, they are basically they are in trouble. They're facing problems, and we are there to assist them. You know, first of all, if we cannot communicate with them properly, we cannot understand what their problem is, and we will in short double their problem. मतलब एक तरफ से हम उनको फैसिलिटेट करने जा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, तो वो उनकी जो मुश्किल है वो डबल हो जाती है, और वो ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिनसे वो कम्युनिकेट फ्रीली कर सकें, जिनको वो अपनी बात आसानी से समझा सकें और जो उनकी बात आसानी से समझ सकें. और बहुत अच्छी बात है, अमेजोन आई थिंक इज़ द फ्यूचर, और बहुत अच्छा डिसीजन है. आई थिंक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, उनको इस तरफ ही आना चाहिए. ई कॉमर्स इज द फ्यूचर, और ऑब्वियसली उसके लिए हमारे बेसिक्स हैं, हमारी जो स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स हैं. यू नीड टू इम्प्रेस योर क्लाइंट. इफ यू कैन इम्प्रेस योर क्लाइंट, यू कैन गेट वट एवर फेवर यू वॉन्ट फ्रॉम हिम. ठीक है ना? तो व्हाट वाज योर नेम अगेन? सॉरी, मोइस. ओके, एक दो दफा पूछूंगा तो आई गेट टू रिमेंबर. सॉरी जी. सर आपका गुड नेम? मोहम्मद सार. ओके, I completed my FS pre-medical. Okay. Now further I'm Studying further. Yes. FSC pre-medical. Why are you doing spoken English course? same. I have joined the Amazon Research Distance course. Ah, very nice. So that's So for that purpose, you want to improve your skills as well. Yes. Okay. Okay, that's perfect. So, have you guys got your course outline yet? No, not from the staff yet. Okay, we will be inshallah starting very quickly. But before that, I want to have a very short, very basic assessment test. Okay, so I'll get to know about the idea from where should I carry you and where should we start. Okay, just excuse me for a second. Let me get the handouts for you. Okay, ji, in the meanwhile, we should move forward to our next. As we know the introduction, it's basically a comprehensive course that we have designed for all the students who wants to improve their communication skills and they want to pursue in their different fields of life, let's say professionally and of course socially as well. So what we do in spoken English, we let you get familiar with that language, with that particular language, and how you can structure a sentence of your own choice. Like we sometimes हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं, but unfortunately हम उसको वो बात उस तरह कर नहीं पाते, उसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. और सबसे बड़ी जो चीज़ है that is vocab. आप मुझसे एग्री करेंगे, vocabulary is something like it's very serious and it's very important element. I must say it's a crucial thing. It's a major element. It's a major element indeed. Like whenever you can say as a patient gets admitted into ICU and doctor say it's very crucial situation. So this is that crucial situation is with our spoken English as well. If we don't have that particular tool of our, you can say, communication, we won't be able to communicate properly and up to the mark. और आई कैन से लाइक आप बिल्कुल उसके मुताबिक बात नहीं कर पाओगे, शायद आपकी बात आधी अधूरी रह जाएगी. तो वोकैबुलरी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे. आई हैव टर्मिनोलॉजीज, आई हैव स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग ब्रिटिश काउंसिल. जी वालेकुम. So terminologies regarding vocabulary, how to build your vocabulary, because there's, you can say, a whole course can be designed on even simply just learning vocabulary. आप सिर्फ vocabulary सिखाने के लिए हम उस पर एक पूरा कोर्स डिजाइन कर सकते हैं. इतनी उसमें डेप्थ्स हैं, इतनी उसमें चीज़ें अवेलेबल हैं, इतनी उसमें गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, जस्ट टू हेल्प यू आउट कि आप अपनी vocab को improve करें. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और vocab के बाद obviously बात the very next thing that we need, that is our sentence structure. That हमें पता होना चाहिए कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, हम उस टेंस की किस फॉर्मेशन में अपना कम्युनिकेशन हम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं या कर पाएंगे. तो दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि vocab को जहाँ पे आपको ऑन द फर्स्ट हैंड चाहिए, आप उस vocab को अल्टीमेटली तब तक सही तरीके से यूज ही नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी ग्रामेटिकल उसके स्ट्रक्चर का आइडिया ना हो. कि इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं कॉलोकेशन.
ये एक नई टर्मिनोलॉजी है कोलोकेशन, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय ब्रिटिश काउंसिल. Collocation means a word that is, you can say, fit, or you can say that is needed to be placed on the right, you can say, place. मतलब आप जो word इस्तेमाल करेंगे वो क्या आपके there are different structures, there are different, you can say, terminologies, और उनकी मुख्तलिफ साख्त होती है. मतलब एक word आपने वो क्या आपका कहीं से भी देखा, there are many sources like newspaper, like multimedia, like your books. आपने जो word उठाया, अब आपको उसकी जब तक फॉर्मेशन का नहीं पता, आप उसको उसके अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना जी. लाइक आपने उसको स्पेसिफाई करना है दैट वेदर दिस वर्ड इज अ नाउन, इफ इट्स एन एडजेक्टिव, इफ इट्स एन एडवर्ब, और इफ इट्स, यू कैन से, अ प्रोनाउन. तो ये अपनी साख्त के मुताबिक वहीं पे फिट होगा. आप कभी भी किसी वर्ब की जगह पे किसी नाउन को प्लेस नहीं कर सकते हो. ठीक है ना जी. किसी नाउन की जगह किसी एडजेक्टिव को प्लेस नहीं कर सकते हो. तो हमें उस स्ट्रक्चर का, उस कोलोकेशन का और वोकैब का इक्वली आइडिया होना हमें बहुत जरूरी है. और लास्ट में आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन. आई हैव रिटन प्रोनाउंसिएशन द वेरी लास्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोकन इंग्लिश. प्रोनाउंसिएशन, of course, सिर्फ written communication is not enough. Communication is, you can say, sum of verbal and written communication. मतलब ये दोनों का मजमुआ होती है. इसमें आपको रिटन कम्युनिकेशन भी रिक्वायर्ड है और इसमें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लिखना आता है और हमें बोलना नहीं आता, तो इट मीन्स यू कैन नॉट कम्युनिकेट वेल. आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली. तो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी जुबान को सीखने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो आपका लहजा है. चाहे आप उर्दू में बात करें, चाहे आप पंजाबी में बात करें, चाहे आप इंग्लिश में बात करें, अगर आप उसकी अदायगी, उसका तलफ़ुज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग देम विद देम प्रॉपर्ली एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग एन इंप्रेशन. बिकॉज व्हाट आई से, स्पीकिंग, इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन दैट यू कैन क्रिएट ऑन एनीवन, ऑन योर क्लाइंट, ऑन योर फ्रेंड्स, ऑन योर कोलीग्स, ऑन योर बॉसेस, ऑन योर सबऑर्डिनेट्स. किसी पे भी ये वो पहला इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन का जो आप क्रिएट करते हैं. ठीक है जी. तो प्रोनाउंसिएशन भी हम सीखेंगे. प्रोनाउंसिएशंस के लिए जो सबसे कह सकते हैं यूजफुल चीज़ है, जो बेसिक उसका एलिमेंट है, दैट इज फोनिक्स. फोनिक्स का शायद आपने सुना हो, किसी को आइडिया है? एनीबडी हैज एन आइडिया? सर आपको आइडिया हो फोनिक्स का? ओके. फोनिक्स इज बेसिकली इट इज, यू कैन से, रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स. ये स्पेसिफिकली अगर आप लिंग्विस्टिक्स में स्पेशलाइज करते हैं इंग्लिश में, तो ये उसका एक बहुत ही मेजर एलिमेंट है. वो जब तक आप फोनिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, वो आपको आगे कैरी नहीं करते. दे कैन नॉट कैरी यू इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फोनिक्स. तो फोनिक्स क्या होता है? इट्स बेसिकली द साउंड्स. इट्स बेसिकली द साउंड ऑफ एवरी सिंगल लेटर दैट यू आर प्रोनाउंसिंग सेपरेटली, देन विद सम अदर लेटर्स, और देन विद लाइक मेकिंग अ बेसिक वर्ड. लाइक जैसे कि आप कोई भी ऐसा वर्ड, यू कैन से, अगर हम बात करते हैं, लाइक इफ आई ट्राई टू टेल यू सम साउंड्स ऑफ द वर्ड्स लाइक ए, लाइक यू हैव टू स्ट्रेच योर जॉ एंड यू हैव टू सर्टनली, लाइक ऐसे आवाज ए, तो ये आपका स्ट्रेच होगा. बी, सी, वैसे हम सी सिंपल पढ़ रहे हैं तो दैट्स एस की आवाज आ रही है, सी. लेकिन जरा अगर आप इसको किसी के साथ मिला के पढ़ेंगे, लाइक कैट, ख, तो फिर ये ख आपके थ्रोट से आवाज आएगी. तो दीज आर द फोनिक्स दैट वी विल लर्न इंशाल्लाह इन आवर कोर्स. और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट आपको अप टू द मार्क, अप टू देयर स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह कैरी करेंगे. एक चीज हम अपने ज़हन में रखेंगे बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स. आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दैट यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन स्किल्स. हमारे पास इस वक्त जितना नॉलेज है हमारे लिए काफी है. वी शुड बी मोर देन हैप्पी विद दैट. क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, if you're not confident enough, you cannot communicate, whether it's written communication, whether it's verbal communication. तो confidence होगा आपको, तभी confidence आएगा जब आप उस word की pronunciation accordingly जान चुके होंगे, आप उस sentence का structure, उसकी formation accordingly जान चुके होंगे. ठीक है जी. तो आई होप कि आपको हर बात समझ आती जा रही है, और अगर कोई चीज़ आपको दरम्यान में समझ नहीं आएगी, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ठीक है. आप थोड़ा सा लेट आए हैं सर. कैन आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज? Please have a seat. Have a seat. सर शफाअत रसूल नाम है मेरा. Okay.
और मेरे कल मेरा एडमिशन हुआ है अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी पार्ट से मैंने करवाया था। जी ठीक है। तो लेट हो गया था आज मैं इस वजह से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस एरिया में आया था। ओके ओके ओके। पहले इस एरिया में घूमता था, तो अभी मुझे किसी ने ओके शफात, आप क्या करते हैं प्रायर क्वालिफिकेशन क्या है? सॉरी, जॉब है, आप जॉब करते हैं और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? इंटर किया। इंटर किया। ओके, स्पोकन इंग्लिश क्यों करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है। बिल्कुल। काफ़ी अर्से से मैं समझ रहा था और कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा था। एक तो मेरी ड्यूटी जो है नाइट है और है भी सदाबहार नाइट, हाँ, तो इस वजह से। लेकिन अब दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा ख्याल है जी आपका, और सबका ये ख्याल होना चाहिए। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट साइड। जी, अब हम बात करते हैं टिपिकली कोर्स इंट्रोडक्शन की। हम इसमें क्या क्या चीज़ें, आप इसको नोट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। वैसे आपको रिटर्न में भी दे दिया जाएगा। इसमें हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हमारी बेसिक ग्रामर होगी, ठीक है। इसमें हम ऑब्वियसली तमाम इसमें जो लवाजमात हैं वो सारे इसमें मेंशन्ड है। इसमें प्रोनाउंसिएशन है, इसमें आपकी बेसिक वोकैबुलरी है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, किसी को कोई आइडिया है वैसे ऑलरेडी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? मोइस, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट? नहीं सर। नॉट सर। जी शफात, कोई इशू सर पढ़ा होगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। आज ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हमारे सबके साथ, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता नहीं है कि इन द बिगिनिंग व्हेन इट्स टाइम वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, वी डोंट लर्न इट प्रॉपर्ली, देन अल्टीमेटली ये घूम फिर के हमारे सामने आ जाता है दोबारा कि जी आप इसके बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। दे वेरी बेसिक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। डायलॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं। हम कोशिश करेंगे क्लास को थोड़ा सा एक्टिव रखने की, इंटरेक्टिव रखने की। जब तक हम इंटरेक्शंस नहीं करेंगे आपस में प्रैक्टिकली, आई मे आस्क यू टू कम ऑन द डाइस एंड स्टेज एंड यू कैन प्रेजेंट समथिंग। आप कोई स्टोरी, कोई मजमून, कोई डिस्कशन, कोई आइडिया, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। I again say confidence is the key to success. Yes. I have many successful stories. I've seen many successful students. They have succeeded just on the behalf of confidence. They didn't have anything properly, लेकिन उनके पास confidence था और वो successful हो गए. So guys, you will have to develop that self-confidence into yourself. Like whether if it's a class of 1,000 people, like, and if I'll ask you to come on the stage, then you will be coming confidently and saying or like representing whatever you want. ठीक है जी, इस तरह का confidence इंशाल्लाह we will be carrying out. और इसमें slangs, expressions हैं। slangs को शायद आप जानते होंगे, short languages होते हैं, like I can't, I cannot को कहते हैं I can't। तो इस तरह की शॉर्ट टर्म्स जो होते हैं वो स्लैंग्स कहलाते हैं। इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल जैसे मोइस ने बताया कि जी हमारी कम्युनिकेशन होती ही अमेरिका, यूके, यूएस वगैरह, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इफ़ यू आर फेमिलियर विद देयर एक्सेंट, the video is it also good? Yeah. You have to unmute the video. It's okay. You just use and told students to mark the attendance. You have to say it again. Yes. Okay, guys. Again, I would like to inform everybody who's online and who's there. Please mark your attendance so that we should proceed with the class. Okay. As I was saying, slangs. Yeah. So slangs were something very, you can say, common in the communication. They feel quite comfortable with you guys. If you are communicating according to them, अगर आप गोरों से उनके मुताबिक बात करते हैं ना, तो वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। मीन्स एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे जी वर्क नाउ, यहाँ पे हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे अफगानी है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में और मुख्तलिफ काम करते हुए दिखाई देते हैं, और अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और सडनली वो अपने ही किसी दोस्त से अपनी जुबान में कम्युनिकेट करते हैं, तो समहाउ वी फील अ बिट ऑफेंसिव। हमें थोड़ा सा ऑड फील होता है कि यार ये क्या बात हो रही है, लाइक वी आर हियर। और वैसे भी आई थिंक इट्स अगेंस्ट द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक इफ देयर इज अनदर पर्सन ऑफ अनदर कम्युनिटी, तो आपको ख्याल करना चाहिए कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना किया जाए। तो स्लैंग्स और इस तरह के एक्सप्रेशंस इसलिए ही सिखाए जाते हैं कि आप उनको कंफर्टेबल फील कराएं और आप उनको बताएं कि सर वी नो द ड्रिल, वी नो द वे यू वांट टू कम्युनिकेट एंड वी विल कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली। हम उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेंगे, आप उनको जितना कंफर्टेबल फील कराएंगे वो उतना आपके साथ आगे चलना चाहेंगे, उतना ग्रो करना चाहेंगे।
और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आपकी जैसे जैसे गुफ्तगू में आपकी राइटिंग में निखार आता जाएगा, आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली ग्रूम करती जाएगी और लाइक यू विल बी कम्युनिकेटिंग वेरी ग्रेसफुली विद पीपल, सो दैट विल यू कैन से रिफ्लेक्ट यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें जैसे कि बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, जॉब सर्च के लिए जाते हैं, सो दे हैव अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। उनको बहुत मसला होता है कि जी वो हम इंटरव्यू कैसे देंगे, इंटरव्यू में क्या बात करेंगे, किस तरह बात करेंगे, और अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ और थोड़ी सी इस मतलब लैंग्वेज को यूज़ करें, नॉट इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज मदर लैंग्वेज, बट अगर आप इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें तो यू विल हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एम्प्लॉयर और डेफिनेटली यू हैव मोर चांसेस टू बी हायर्ड। ठीक है जी। और बॉय आपका इंट्रोडक्शन? बिलाल। अच्छा जी। बिलाल आपकी क्वालिफिकेशन? इंटर किया हुआ है। बिलाल स्पोकन इंग्लिश क्यों करना चाह रहे हैं? जी इंग्लिश बेहतर करने जा रहा हूँ। इंग्लिश बेहतर करनी चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे? फ्रीलांसिंग करने जा रहा हूँ। वेरी नाइस। फ्रीलांसिंग में क्या करेंगे जी? ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और नेक्स्ट ज़्यादा शौक ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स का, और ई कॉमर्स में तो बहुत कुछ है, उसमें क्या है स्पेसिफिकली क्या करेंगे? फर्स्ट में तो वर्चुअल असिस्टेंट का रहता है। वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ व्हाट? अमेज़न? जी अमेज़न, दराज वगैरह आईटीसी। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, दिस इज वेरी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव चेंज इन आवर कंट्री। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये बहुत अच्छी बात है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, ये बेसिक सी बात है। वाई लर्न इंग्लिश? हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं? हम आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ और आप मुझे यही जवाब दे रहे हैं। बेसिकली प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, लाइक आजकल बहुत से अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको पढ़ाने के लिए, गर्ल्स और बॉयज़, इफ़ यू गाइज want to join a very reputed school in the city, so definitely they'll prefer only a specific person who's good at communication, क्योंकि वो तो प्रेफर ये करते हैं जनाब जिस टीचर की इंग्लिश स्किल्स अच्छे हैं हम तो सिर्फ उसी को रखेंगे। क्यों जी? they are offering very good incentives as well, they are offering very good packages as well, and what they require, they want good communication skills। ठीक है जी। और जैसे कि आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वर्किंग वुमेन घर पे बैठ के भी ख़वातीन काम कर रही हैं, फ्रीलांसिंग कर रही हैं, आप इस चीज़ से फेमिलियर होके, और उनके लिए भी जो बेसिक एलिमेंट है वो आपकी कम्युनिकेशन है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, स्पोकन इंग्लिश है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अगेन जैसे बताया मैंने, एम्बेसी इंटरव्यूज हैं, बिजनेस पर्सनल्स हैं, जैसे कि आप मोइज़ ने बताया कि जी ही वांट्स टू परस्यू हिज बिजनेस इन द फ्यूचर, तो अगर आप बिजनेस को कैरी करना चाहते हैं टू अब्रॉड, तो डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और फ्रीलांसर्स सारे माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फ्रीलांसर्स आर यू कैन से आजकल की हार्ड थ्रो है जी। और इसका आपको ऊपर वाले दोनों बटन चाहिए? जी मुझे चाहिए सर। ये ऊपर वाले इंडेक्स है? मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए था, मुझे वो टेस्ट 1 है टेस्ट 1 जी। टेस्ट 1 की कॉपीज दे दीजिएगा ताकि मैं इसे टेस्ट कर पाऊँ। एक बेसिक टेस्ट मैं सब दोस्तों से लेना चाह रहा हूँ ताकि सबको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, जस्ट कंफर्म मी वेदर यू कैन हेयर मी और नॉट, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट हेयर मी तो शायद हमारी प्रेजेंटेशन का मकसद पूरा नहीं होगा। ओके, आइल्स के साथ साथ हम चूँकि स्पोकन इंग्लिश का भी काम कर रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश की स्ट्रेटजीज भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अपनी क्लास को फर्दर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया है, और ये चीज़ आपको ज़रूर नोट कर लेनी चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी। आप चाहे आइल्स कर रहे हैं, आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, आप यहाँ पे रह के आप अपनी फील्ड्स में आप जैसे भी परस्यू करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे हम स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया दैट वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन एलिमेंट। अब सबके ज़हन में ये सवाल होता है कि जी वोकैब तो हमने बिल्ड करनी है, लेकिन सर कैसे करनी है और उसको कैसे बिल्ड करें कि वो हमें याद भी रह जाए। आई रिसेंटली हैड अ स्टूडेंट, ही स्कोर्ड 7 बैंड्स इन आइल्स, और उसकी एक मेन वजह ये थी कि ही हैड अ वेरी गुड वोकैब। उसने रिसेंटली एमडी कैट का भी एग्जाम दिया था, और उस एग्जाम्स की वजह से ही लर्न 250 वर्ड्स, 250 ऐसे नए वर्ड्स उसने सीखे, ही एडेड इनटू हिज मेमोरी, और उन वर्ड्स की वजह से ही गॉट अ वेरी गुड स्कोर। तो वहां से भी एक चीज आई ऑलरेडी न्यू, मुझे पता भी था कि वोकैब प्ले अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग योर गोल्स। तो आफ्टर हिज रिजल्ट आई गॉट कंफर्म्ड कि जनाब वी नीड टू लर्न वोकैब ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड। सबसे पहले इनिशियली हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि मैं आज आपको सिखाने लगा हूँ, जो बताने लगा हूँ, ये हम डेली बेस पे प्रैक्टिस किया करेंगे।
डेली बेस पे इसका चेक एंड बैलेंस भी होगा, और इंशाल्लाह इस 2 मंथ्स की जो ड्यूरेशन है, हम डेली बेस पे भी जो लेट्स से आई हैव रिटन 5 वर्ड्स अ डे, तो अगर हम 5 वर्ड्स अ डे भी याद करना शुरू करें तो 2 मंथ्स में आप समझ सकते हैं आई थिंक 300 और प्लस वर्ड्स हो सकते हैं हमारे पास, 300 प्लस ऐसे नए अल्फाज जो शायद हमने इससे पहले नहीं कभी सीखे, और वो क्या करेंगे, दे विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं जी, वो अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है लाइक आई विल टीच यू अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश काउंसिल रिकमेंडेशंस द कोर्स दैट आई हैव इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव, हाउ यू कैन बिल्ड योर वोकैब। ठीक है जी, तो इसमें हमने ये अभी अपने पास रख लीजिएगा, आफ्टर दिस आई विल आस्क यू टू इसको टर्न करके रखें अपने पास, टर्न इट, सो थैंक यू सो वेरी मच, एक्स्ट्रा वर्ड ऑफ थैंक्स। आपने अटेंडेंस लगा दी? आप आए अटेंडेंस लगा दी? थैंक यू। ओके सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आई विल आस्क यू टू हैव दिस प्रैक्टिस 30 मिनट्स, विल हैव टू स्पेंड 30 मिनट्स ऑन सोर्सिंग। हम इसको सोर्सिंग बोलते हैं। सोर्सिंग मतलब जैसे कि आप अमेजोन की टर्म में सोर्सिंग बोलते हैं, हम मंगवाते हैं कुछ, ठीक है जी, तो वो मंगवा के हम अपने स्टॉक में रखते हैं, हम लाइक कमोडिटी स्टॉक को मंगवाते हैं, जो चीज़ हमने सेल करनी होती है, जो प्रोडक्ट सेल करनी होती है। तो यहाँ पे सोर्सिंग आपने करनी है, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज। सोर्सिंग किस चीज़ की करनी है? वोकैब की, वोकैबुलरी की, नए नए अल्फाज की आपने सोर्सिंग करनी है, और आपने उस सोर्सिंग के ये मैंने लिखे हुए सोर्सेज लाइक थ्रू यू कैन से रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है जी, कैम्ब्रिज की बुक्स भी अवेलेबल हैं, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया आपके पास अवेलेबल है, आपको कहीं से भी कोई एक नया वर्ड मिलता है, यू कैन ऐड इट, ठीक है ना, ये आपका सोर्स होगा। और उसके लिए आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स डेडिकेट करने हैं इस कोर्स में, अपने टाइम के 30 मिनट्स आपने डेडिकेट करने हैं, और आपने आउटसोर्सिंग करनी है अल्फाज की, वर्ड्स की, और ऐसे वर्ड्स जो आज से पहले हमने नहीं पढ़े, नहीं सीखे, ठीक है, हमें नहीं पता, वो वर्ड्स हम कलेक्ट करेंगे ऑन द डेली बेसिस, और ऑफ कोर्स मैगजीन लुक लाइक वर्ड्स। और हमने करना क्या है, हमने उसको नोट डाउन करना है, उस सोर्सिंग को स्टॉक करना है, फ्रीलांसिंग की जुबान में समझा रहा हूं आपको, हमने उस सोर्सिंग को अपने वो वेयर हाउस में स्टॉक करना है। आपका वेयर हाउस आपकी नोटबुक है, आपने डेली पे लाइक मेक नोट्स ऑन डेली बेसिस, कलेक्ट 5 वर्ड्स अ डे along with required elements। अब वो एलिमेंट्स क्या थे जो मैं बताना चाह रहा था, वो एलिमेंट्स से आपने सिर्फ वर्ड नहीं लिख देना, आपने उस वर्ड का मीनिंग भी लिखना है। हमने अपनी मदर लैंग्वेज में, जो कि हमारी मदर लैंग्वेज, लेट्स से इफ इट्स पंजाबी मदर लैंग्वेज से मुराद मेरा कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जो हम जिस लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेट्स से उर्दू, तो हमने उसका मीनिंग भी लिखना है साथ में, ठीक है। और उसकी कोलोकेशन, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जो दोस्त लेट आए हैं, कोलोकेशन से मुराद जो लफ्ज हमने कहीं से भी ढूंढा है, चाहे वो न्यूज़पेपर, चाहे वो बुक है, चाहे वो कोई भी सोर्स है, हमने पहले उस वर्ड के बारे में अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करनी कि वो वर्ड क्या है, बेसिकली व्हाट इज दैट वर्ड, नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, या कोई एडवर्ब है। बिलाल, आपको कोई आइडिया है मैं क्या बात कर रहा हूँ? नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ये नाउन नाउन का सुना होगा आपने, आगे का वो आइडिया नहीं है। वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। और एडजेक्टिव बस इससे ज़्यादा ठीक हो गया जी। शराफत, आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई इशू नहीं है। एनी हाउ मोहित साहब को आइडिया था, आपको आइडिया है ना? नाउन सर बस पता है, लेकिन इतना डिटेल डेफिनेशन डिटेल में मैं लिखवा दूंगा, मैं आपको लिखवा दूंगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। और सिनोनिम्स का सबको पता होगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं जी? हम मायनी अल्फाज, मुश्तरिक अल्फाज, जिनके मीनिंग सेम होंगे लेकिन वर्ड्स वो मुख्तलिफ होंगे, सिनोनिम्स। जैसे कि आप चार्मिंग को ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, लेडी को वुमेन भी कह सकते हैं, मेल को मैन भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को प्यूपिल भी कह सकते हैं। वो मीनिंग्स में सेम है अल्फाज, लेकिन दे आर डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन उनके जो मायनी है वो सेम है। तो सिनोनिम्स भी हम कलेक्ट करेंगे, और उन सिनोनिम्स से क्या होगा, हमारी वोकैब इंप्रूव होगी और हमारी वोकैब बढ़ेगी। और लास्ट में लिखा हुआ है रिप्रोड्यूस दीज वर्ड्स, आपने इन अल्फाज को दोबारा इस्तेमाल भी करना है, जो
बेसिक उसका क्या कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट है, जो बेसिक फार्मूला है कि ये याद कैसे होंगे। जब तक कोई भी चीज़ आपके हाथ से गो थ्रू नहीं होगी, आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। सिर्फ देख लेना, सुन लेना, पढ़ ले और राइट नोट डाउन कर लेना इज नॉट इनफ। आप घर जाके नोटबुक को रख देंगे, नॉट बी एबल टू मेमोराइज दैट वर्ड, आपको वो कभी भी याद नहीं होगा। उसके लिए क्या चीज़ आपको ज़रूरी है? उसके लिए आपको ज़रूरी है दैट आप उस वर्ड को रिप्रोड्यूस करें। जो वर्ड आपने सीख लिया आप अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें। आप उसकी कोई स्टोरी बना लें, उसको किसी स्टोरी में इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसे राइट कर लें, कोई हिंट राइट कर लें। तो वो जब तक आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, आपको मतलब वो वर्ड याद नहीं होगा, वो वर्ड याद नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, तो अच्छा गाइस, आप ऐसे कीजिए, टेक योर 5 मिनट्स और ये जो आपको टेस्ट दिया गया है आप प्लीज़ इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। और जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो मुझे बता सकते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि मुझे आपके मैसेजेस से आइडिया हो जाएगा कि आप कितना जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि अभी हम टेस्ट के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। many touchable सॉरी, मैं जो ऑनलाइन तो पार्टिसिपेंट है उनके साथ नहीं शेयर हो सकता टेस्ट? माय डियर बिल्कुल हो सकता है। आप ठहरिएगा, मैं अभी बता देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, वो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं और फिर आप भी उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर आप उसको ऑनलाइन ही शेयर कर लीजिएगा। जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, मैं पता कर लेता हूँ, होल्ड कीजिएगा।
ओके जी, अभी मैनेजमेंट को बोल दिया मैंने, अभी विद इन फ्यू मिनट्स आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएगा इस टेस्ट का। और ये टेस्ट हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है, बल्कि इम्पोर्ट किया है थ्रू ब्रिटिश काउंसिल और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रैक्टिकली और फिजिकली क्लास अटेम्प्ट करें। आपके हमारी क्लास टाइमिंग्स 10 to 12 AM है इन द मॉर्निंग। और इसकी लेट्स से 2 months की ड्यूरेशन है। आई थिंक दे आर गिविंग अ वेरी बिग डिस्काउंट ऑन द फीस। दे आर चार्जिंग जस्ट 5,000 rupees एंड यू कैन से यू कैन हैव 2 months क्लासेस और आप उसमें ये सब कुछ सीख सकते हैं। लाइक वी आर हैविंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, हम इंटरेक्शंस रखेंगे, क्लास के इंटरेक्शंस रखेंगे और प्रेजेंटेशंस होंगी, बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह की प्रैक्टिस होगी। बहुत कुछ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के मटेरियल के अंदर। अभी जी वालेकुम अस्सलाम सर, मतलब हुसैन हियर। बेसिकली पहले तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव से बात होती थी एंड नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच इंस्ट्रक्टर। सर मैं आज रास्ते में नोट होके जा रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली मेरे इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा कोर्स कॉन्टेक्ट भी मैंने देखा था जो मुझे व्हाट्सएप हुआ था। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि मैं बेसिकली जॉबियन हूँ और वीकेंड पे आई एम डूइंग मास्टर फ्रॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, तो आपको पता है कि प्लेसेस कैसे है नहीं, तो मैं मार्केट का बंदा सर्विसेज डिपार्टमेंट देख रहा हूँ एट एस20 AGS के। तो उसमें बता जो हमारी मार्केट एप्लीकेशन है दैट इज टोटली पंजाबी और लिटिल बिट उर्दू, बट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। even when I go to factories like Honda car, Honda motorcycle, and then there people talk Punjabi, कैसे होते हैं, कीमत गुजर रही है, like this. So you know जो एक कम्युनिकेशन का जो प्रॉपर है वो चैनल अवेलेबल होता है हमारी इंडस्ट्री में और मार्केट। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन ये था कि जो मेरा कंसर्न ये था कि जो आपकी टाइमिंग है ना, दैट इज टोटली क्रॉस मैच मैं यानी वो सही नहीं कर पाती। जो मॉर्निंग में अभी मैं कंपनी गाड़ी में बैठा हूँ और कहीं जा रहा हूँ राइट साइड, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा काफी टाइम आपका ना ये बहस किया टुडे आई शुड जॉइन। ठीक है, मोबाइल के थ्रू मैं आपसे ये आपका मैंने ज्वाइन किया हुआ है। यू आर मोर देन वेलकम। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात सुन के। थैंक यू। और हम आपको बिल्कुल जी प्लीज। सॉरी सर मेरी पहली ये थी कि मैं कह रहा था कि इवनिंग में कुछ बनाया जाए प्रोजेक्ट, और नंबर सेकंड ये था कि EMI का जो आता है तो व्हाई शुड यू नॉट स्टार्ट हियर अपर दिन देन जो मुझे 5:30 में मेरा ऑफ होता है और सुबह 8 o'clock बायोमेट्रिक अटेंडेंस है मेरी। तो यू नो आपको कौन सा सूट कर रहा है, आपको कौन सा सूट कर रहा है इंस्टीट्यूट? बेसिकली तो मुझे आपका दिन बहुत सूट करता है। अल्फा भी दफ्तर मेरा इधर ना जी वेरी नाइस। वहाँ पे भी क्लासेस हो रही हैं और वहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर हैं अवेलेबल, कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम तो मेरी क्योंकि जब मैं लास्ट कम्युनिकेशन में थी आपके रिप्रेजेंटेटिव, आई डोंट नो हर नेम एक्चुअली, बट शी टोल्ड दैट कि हमने अभी वहाँ पे शुरू करवाया है और अल्फा में नहीं करवाया, अल्फा में दूसरे कोई और मीडिया से वो करवाया। हाँ क्या, तो क्योंकि मैंने जो पोस्ट कंटेंट देखा था दैट वाज ओके 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 वेरी गुड। सो जो अट्रैक्शन थी ना वो इसमें करीब कैसे नहीं जाता है। अच्छा, तो ऐसा है बतूल साहब, हम आपके लिए सर कह सकते हैं कि ऑनलाइन सिखा सकते हैं सर। हम हाजिर हैं सर आप जैसे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए। हम आपको FM 90 कभी पेश आप मेरे ना घर से भी मुझे ना मेरी वार्ता है ना वो भी बहुत खुशी होती है कि भाई तुम मेरा बेटा मुझे कॉल कर लिया कर अच्छी बात है। तो मेरी कोई ये तरह की स्पेशल रूटीन बड़ी टफ है मेरी। तो लाइफ रूटीन मेरी ना जो बेसिकली ऑफिशियल लाइफ है वो बड़ी टफ है। बिल्कुल ऐसा उस वजह से बट सर आई थिंक आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। यू कैन गेट प्रमोटेड एज वेल अगर आप इस स्किल को सीख लें। दिस इज बेसिकली अ लाइफ चेंजिंग स्किल। लोग बेसिकली ये स्किल इसलिए सीखते हैं। Once you get promoted, you become a boss. You'll have a very good communication skills. तो फिर आपको उर्दू पंजाबी में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you learn this particular skill, you're more than welcome. आपकी सोच है कि
which type of people like indicate and how they talk, how they hate English. बेसिकली मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसलिए समझ रहा हूँ आपकी बात बिकॉज आई एम अ मार्केटिंग पर्सन बाय माय सेल्फ। मैं खुद भी एक मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ टफ इट इज टू सर्वाइव इन मार्केट। बिल्कुल ऐसी बात है सर। तो सर यू मोर वेलकम सर, कोई इशू नहीं है। हम ऑनलाइन इसीलिए डिज़ाइन करते हैं कोर्सेज आप जैसे दोस्तों के लिए कि जिनके लिए फिजिकल क्लासेस आर नॉट यू कैन से वायबल, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हम अपना 110% उसमें भी पुट करते हैं मेक श्योर करने के लिए कि आप लोगों तक वो सारा कुछ एज इट इज़ डिलीवर हो जो हम यहाँ पे फिजिकली अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बट बेसिकली अगर आपका भी हो जाए तो बेसिकली मैं तो वहाँ से नहीं करता हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम बेसिकली बहावलपुर, ठीक है। आई एम लिविंग हियर इन हॉस्टल। तो टाइमिंग आफ्टर इवनिंग टाइमिंग नॉट फॉर मी, मैं वैसे भी यानी क्या कहते हैं लेट नाइट की तो उसकी बात सोचता हूँ, ठीक है, और अर्ली जाने वाला, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों के स्टेप को ये जो आफ्टर 5:36 जो है PM में स्टार्ट हो। सर मैं आपका वैसे तो मैनेजमेंट भी सुन रही है आपकी बात को, तो मैं सर आपका मैसेज फर्दर क्योंकि बेसिकली अगेन टेक्निक है जो पोस्ट कॉन्टेंट था उसकी वजह से मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ, तो पोस्ट कॉन्टेंट तो डेफिनेटली उसकी वजह से मैंने जो मुझे अटेंड किया उसमें DNA और इस आज आपकी ये जो वर्कशॉप हो रही है इसको अटेंड करने को भूल गया सीधी बात है। तो आई लाइक दैट। तो अगेन द बेस्ट इज फीलिंग जो फिजिकल हो और आपको जैसे जी जरूर सर, इट विल बी अ प्लेजर इंडीड सर, इट विल बी अ प्लेजर इंडीड इंशाल्लाह। I'll endorse your message to the management इंशाल्लाह। हम इस बारे में because lots of professionals are यकीन माने बहुत स्पेशल लोग हैं, they want to do this, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में भी पर्टिकुलर यू नो द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी कुछ ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस पे इतना वो या दूसरी जो है ग्रोइंग पे इतना नहीं वो करते हैं फोर्स कर रहे होते हैं, लाइक जिस तरह LSC होगी या लम्स होगी, इस तरह की जो इंस्टीट्यूट है वो तो करते हैं जी बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं करते या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में उनके पास इतना टाइम नहीं होता बेसिकली शायद। और आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस सिंस पास्ट यू कैन से 8 to 9 years. I've been teaching for almost 7 years, और उससे पहले से मैं ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ उस चीज़ को कि बहुत सारी जगहों पे अभी स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पे बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे ऐसे शोबों में इस स्किल को ऐड करने की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है हमारे लिए अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज करें इस स्किल को जो कि लिंग्विस्टिक स्किल है हमारा। बिल्कुल ऐसी सर इंशाल्लाह सर दिस इज फ्रॉम माय साइड। मैं सर मैं जाऊंगा मॉडल वापस जाऊं, मैं लीव कर दूंगा अगर इंशाल्लाह पूरा टाइम मिला तो मैं कितने में 2 घंटे का सेशन होगा जी, 2 घंटे का सर, 12 बजे तक सेशन है हमारा सर। और 12 बजे बाद इंशाल्लाह सर लीव बैक कर दूंगा जी, और ऐसा कुछ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, आप लोगों के साथ अगर ऑनलाइन स्क्रीनशॉट शेयर हो चुका है तो प्लीज़ आप भी टेस्ट अटेम्प्ट करें और आप बताइएगा जनाब कर रहे हैं अभी आप हो रहा है टेस्ट। तब तक हम ऑनलाइन क्यूरीज ले लेते हैं, अगर किसी की कोई क्यूरी है तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम, यू गाइस कैन आस्क। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होता अभी हो जाता है, आई आस्क्ड द मैनेजमेंट, अभी वो शेयर कर देते हैं आपके साथ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और फिर आप उसको ज़रूर रीसबमिट कर दीजिएगा या उसके आंसर्स आप वैसे टाइप करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऑलमोस्ट 36+ टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम स्टेज बाय स्टेज स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, जो हम सिखा चुके होते हैं। उन टेस्ट को फिर असेस करने के लिए उन स्किल्स को हमने 36+ टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं, जिनमें से एक अभी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। और ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि अगर आप फिज़िकली इंटरेक्ट करें क्लास के साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। आप यहाँ पे जब पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकली क्लास में तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उस कॉन्फिडेंस में आप ये सारे स्किल्स सीख सकते हैं। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ने
सरताज ने लिखा हुआ है जी, सरताज अहमद ने लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने पूछा था और तो किसी दोस्त ने नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सरताज ने ही बताया है। आई थिंक मतलूब साहब भी लिखे गए हैं, देयर वेरी फ्यू। तो देयर आर टोटल 8 नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। ये क्या चीज़ें हैं हम अभी इनको सीखेंगे इंशाल्लाह, एंड आई विल बी टेलिंग यू लाइव एंड यू गाइस कैन राइट इट डाउन। इनकी फर्दर डिटेल मैं आपको बताऊंगा, इनकी डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा और इनकी एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें। गाइस टेस्ट हो गया जी आपका सारा, सर प्लीज़ मुझे हैंड ओवर कर दीजिएगा। वॉइस हो गया कर लें जी। बिलाल आप ऊपर अपना नाम भी लिख दीजिएगा प्लीज़, नाम और फ़ोन नंबर भी लिख दीजिएगा। नाम, फ़ोन नंबर। वोकैब के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कोलोकेशन की सबको समझ आ चुकी है तो प्लीज़ लेट मी नो, कंफर्म इट एवरीबॉडी। ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं उनको आवाज़ आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू। ओके, दैट्स परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। इसके रिजल्ट्स मैं इंशाल्लाह आपको आफ्टर द क्लास दे दूँगा विद इन फ्यू मिनट्स, और तब तक हम आगे क्लास को प्रोसीड करते हैं, लेके चलते हैं आगे। जी बिलाल कितना रह गया बॉय? Okay guys, I would like you guys to have get your notebooks, अपनी notebooks डालें और हम बात करते हैं आज जो पहला हमारा लेक्चर है। ओरिएंटेशन तो थी हमारी, लेकिन हम अब प्रॉपर्ली इसको स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे आने का मकसद पूरा करते हैं। दैट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी, हेडिंग दे रहे हैं आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? Just excuse me for a second, please. Okay, nice. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्पीच से मुराद हम क्या ले सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? इसका तो हमें पता होगा सबको। बिलाल, एनी आइडिया व्हाट इज स्पीच? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? जी शराफत जनाब। सर स्पीच जो हम बात करते स्पीच इज बेसिकली हम एक फ्लॉलेस, बगैर रुके किसी भी गुफ्तगू को, लाइक आई मे स्पीच, आई मे हैव अ स्पीच ऑन द डाइस, जिसको आप तकरीर भी समटाइम्स कहते हैं, लेकिन नॉर्मल वेज में हम इसको गुफ्तगू के मायने में लेते हैं। स्पीच पार्ट्स उसके हिस्से हैं,
ठीक है ना। तो अगर आप किसी से बात करते हैं तो उस बात को करने के लिए कुछ ऐसे ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, जिनकी मदद से आप एक प्रॉपर गुफ्तगू कर सकेंगे और आप अगले बंदे को अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे, ठीक है ना। उसको पता चलेगा कि आप बात क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके लिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ, लिखिएगा देयर आर 8 नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। Number 1 noun, number 2 pronoun, number 3 verb, number 4 adverb, adjective, preposition। बेसिकली अगर इसको प्रोनाउंस करें तो हम वैसे प्रीपोजिशन बोलते हैं, इसके नीचे भी एक मकसद है, लेट यू नो। प्रोपोजिशन के बाद है जी कंजंक्शन, और एक है इंटरजेक्शन। 8 हो गए जी आपके। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज मैं इसमें ऐड करवाता हूँ, आर्टिकल। बहुत सारे दोस्तों को इसका भी पता नहीं होगा। आर्टिकल भी बहुत जरूरी है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा अभी। सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। व्हाट इज अ नाउन? ये तो सबको पता है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो एनीबडी हैज एनी आइडिया व्हाट इज अ नाउन? डेफिनेशन ऑफ नाउन आप अपने अल्फाज में बता सकते हैं। कोई भी सीपीटी या पर्सन प्लेस थिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मकसद सिर्फ क्लास को एक्टिव रखना है। आपसे कुछ सवाल करता हूं, तो इसमें क्या होगा, हम एक्टिव रहेंगे। अगर हम एक्टिव इंटरेक्टिव रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। प्रॉपर अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप लिख लें नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। अब तो उन्होंने इसमें सिचुएशन भी ऐड कर दी है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और सिचुएशन इज नोन एज अ नाउन। किसी भी शख्स, चीज, जगह या कैफियत को नाउन कहा जा सकता है, नाउन कहा जाता है। उसकी एग्जांपल्स में किसी भी शख्स, मोइस, आपका नाम साद, बिलाल, शराफत, हम सब नाउन हैं, ठीक है जी। उसके बाद जगह, PNY जोहटा, ठीक है जी। और शख्स, चीज, लेट्स से टेबल, कुर्सी, नोटबुक, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आप आइडिया या कैफियत, सच, झूठ, ठीक है ना, ये कैफियत भी हैं, ये आइडियाज भी हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये भी नाउन की अब आ चुकी हैं, रेंज में आ चुकी हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? The word which is used at the place of noun. Very nice, excellent, very good. A word that is used instead of a noun. A word that is used instead of a noun is known as a pronoun. ऐसा हर वो लफ्ज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन कहलाता है। शाफत, बात समझ आई मेरी आपको? A word that is used instead, instead का मतलब है उसकी जगह पर, उसके मुतबादिल। नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक वजह है, वो वजह क्या है? अगर हम कोई भी कम्युनिकेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, हम कोई स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, ऐसे राइटिंग स्टार्ट करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देते हो, आप बजाते खुद भी एक नाम हो, आप किसी भी पर्सनैलिटी पे कोई ऐसे लिख रहे हो, जैसे आप माई बेस्ट फ्रेंड पे बात कर रहे हो कि जी अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली टेक्स ब्रेकफास्ट। अब आप हर चीज में उस नाउन को रिपीट कर रहे हो, लेकिन जब रिपीटिशन आती है तो किसी भी कम्युनिकेशन का जो इंप्रेशन है वो लो हो जाता है, वो कम पड़ जाता है। बार बार एक चीज को जब आप रिपीट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन का जो इंप्रेशन है वो वीक हो जाएगा, सुनने वाले को वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमने प्रोनाउन रखा है कि हम उस नाउन की जगह पे प्रोनाउन प्लेस कर देंगे। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही
lives next door to me, he gets up early in the morning. अब आप जितनी दफा मर्जी ही यूज कर लेंगे, आपको ऑड फील नहीं होगा, आपको उस क्या कह सकते हैं उस लैंग्वेज के जो रूल्स और रेगुलेशंस के ऑपोजिट कुछ ज्यादा फील नहीं होगा। और ये एक नेचुरल चीज है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो सम टाइम जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी पूरी ग्रामर की, तो जब भी आप कोई गलत जुमला बोलेंगे या आप कोई गलत लफ्ज लिखेंगे तो आपको खुद फील होगा, आपको एक सेंस आपकी डेवलप हो चुकी होगी, आपको लगेगा यार मैं ये वर्ड हो गया आपका यहाँ पे गलत प्लेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलत प्लेस कर रहा हूँ, तो वो आप उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करेंगे। वो तब होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वो सेंस डेवलप हो चुकी होगी। अग्री करें जी सर? आगे चलते हैं सर। वर्ब, व्हाट इज अ वर्ब साथ? जरा नहीं पता? Verb is a word which action or state is known as verb. बहुत जी, वेरी नाइस, गुड है जी। An action is done or to be done, किसी भी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है, फेल कहलाता है। An action is done or to be done is known as a verb। ठीक है जी। वर्ब की बहुत सारी किस्में हैं। हमारे सुबह उठने से लेकर हमारे रात को सोने तक जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे ऑल आर वर्ब्स, वो सारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है जी। कोई एक वर्ब बताएं फिलहाल। सारे वर्ब Writing. हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ब्रदर एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। एक्शन, किसी भी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। तो आप इस टाइम कौन सा काम कर रहे हैं? Writing, listening, going, walking. जी ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। ओके, आगे चलते हैं जी। वर्ब के बाद आ जाता है एडवर्ब। नाउ व्हाट इज एन एडवर्ब? Adverb is something like a word that adds something into the meaning of a verb। ऐसा लफ्ज जो किसी भी वर्ब के मायने में इजाफा करे, और ना सिर्फ वर्ब के मायने में बल्कि किसी भी एडजेक्टिव के मायने में और किसी भी एडवर्ब के मायने में, यानी कि वो अपने ही मीनिंग में दोबारा भी इजाफा कर सकता है, वो एडवर्ब कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, कॉमा एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ इज नोन एज एन एडवर्ब। Word that adds something. That adds something into the meaning of a verb, comma adjective or adverb itself is known as an adverb। कि वो हर ऐसा लफ्ज जो verb यानी फेल, adjective और खुद अपने ही मायने में इजाफा करे, वो adverb कहलाता है। ठीक है जी। अब adverb के बाद आ गया आपका नेक्स्ट है जी adjective। वो इस adjective का नहीं आइडिया? नहीं सर। अच्छा जी। एडजेक्टिव, जैसे कि अभी हमने एडवर्ब की बात की, एडवर्ब ऐसा लफ्ज है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के मीनिंग में ही इजाफा करता है। तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन, किसी भी अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, वेदर इट्स गुड और बैड। ऐसा लफ्ज जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बयान करे। क्वालिटी कैन बी अ गुड और बैड, वो कोई अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, वो कोई बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। तो अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एन एडजेक्टिव। ठीक है जी। एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आ गया आपका प्रपोजिशन। तो एक मिनट डिटेल बता दें दोबारा डेफिनेशन। एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ नाउन or pronoun, whether it's good or bad, is known as an adjective। उसके बाद है जी प्रपोजिशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रपोजिशन। आपके सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कह सकते हैं कि की समझी जाती है। विदाउट प्रपोजिशन यू कैन नॉट कनेक्ट करता है प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है। एक सेकंड, मैं जब पूछूं सर तो आप तब बताइएगा प्लीज।
ठीक है, मैं जब आप दोस्तों से पूछूंगा तो आप मुझे तब बताइएगा। मैं अभी क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मुझे आपको टाइप करके बता दीजिए, ठीक है। ओके, तो प्रोपोजिशन की बात हम कर रहे हैं। प्रोपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ वर्ड और अ सेंटेंस। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स, जोड़ता है। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज नोन एज अ प्रोपोजिशन। अब इसको पोजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं। प्रोपोजिशन की डेफिनेशन लिख लें आप। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज नोन एज अ प्रोपोजिशन, ठीक है। और इसको अभी इसको पोजिशन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ पोजिशन वर्ड। इट इज ऑल्सो known as position words. इनको पोजिशन वर्ड भी बोलते हैं। और जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, अपॉन, एक्सेट्रा, ये तमाम पोजिशन वर्ड्स है जो पोजिशन को एलोकेट करते हैं कि कौन सा नाउन कहाँ पे है, कौन सी चीज कहां पे प्लेस हो चुकी है, हो रही है या होगी, ठीक है। तो ये पोजीशन वर्ड्स भी कहलाते हैं। बिलाल समझ आ गई बात की? प्रोपोजिशन क्या होती है? अभी मैंने बताया आपको व्हाट इज अ प्रोपोजिशन। सर जो टू सेंटेंस और वर्ड को जोड़ती है, वर्ड को जोड़ती है। शाबाश, वेरी गुड जी। शाबाश, कौन कौन सी प्रोपोजिशन सर? इन, ऑन, बिहाइंड, ये आपस में वगैरह। इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, अपॉन, ठीक है। तो ये प्रोपोजिशंस की कुछ इकसाम है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के बाद आ रहा है जी आपका नेक्स्ट वर्ड, दैट इज योर कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन थोड़ा सा मॉडरेट वर्जन है आपकी प्रोपोजिशन का। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू कंप्लीट सेंटेंसेस विद ईच अदर। कंजंक्शन इज अ वर्ड that joins two complete sentences with each other. They are also known as cohesive device or linking words. They are also known as cohesive devices or linking words. Linking words इसीलिए बोला जाता है कि ये join करवाते हैं, जोड़ते हैं दो मुकम्मल जुमलों को। कंजंक्शन स्पेलिंग क्या होगी इसके? जो CONJUN, जो लिंकिंग से पहले आपने बताया, कोहेसिव डिवाइसेस, COHESIVE, कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस और लिंकिंग वर्ड्स। कोहेसिव डिवाइसेस और लिंकिंग वर्ड्स कंजंक्शन को, जैसे कि एंड, बिकॉज, हाउएवर, मोरओवर, ये तमाम अल्फाज बात को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक जुमला एक बात मुकम्मल कर चुके होते हो आप, लेकिन उसके बाद आप कोहेसिव डिवाइस यानी कि लिंकिंग वर्ड या कंजंक्शन इस्तेमाल करते हो क्योंकि आपकी बात आपकी आगे चल रही होती है। आप दो बातों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। एंड, बिकॉज, हाउएवर, मोरओवर वगैरह इस्तेमाल करके ये कोहेसिव डिवाइसेस की वजह से आप दो मुकम्मल जुमलों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड लास्ट है, आर्टिकल भी इसके बाद है, आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज लाइक अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, दैट हेल्प्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, सॉरोनेस, happiness, excitement, etc. Interjection is a word that used to express your feelings like happiness, sorrowness, excitement, etc. बहुत सारी examples इसकी, जैसे कि hurrah, we have won the match. Alas, I have lost my car, my pen, whatsoever. तो आप जब आप like oh, सडनली आप हैरत से ओह वेयर डिड इट गो, वो किधर चला गया, यानी कि ब्रावो, व्हाट अ मैच। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये तमाम इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ये तमाम अल्फाज इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए
इस्तेमाल होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल हो चुके हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज आर्टिकल। इसके बगैर आपकी गुफ्तगू, आपका राइटिंग स्ट्रक्चर, आपका स्पीकिंग स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हो सकता है, दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवाता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, indefinite article and definite article. जी, there are 2 types of articles, indefinite article और definite article. There are 2 types of indefinite articles. आगे लिखिएगा, इंडेफिनिट के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि 2 आर्टिकल्स हैं जिनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कह सकते हैं, ए और एन। ए और एन ये आपके 2 इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। दे आर देयर टू सपोर्ट अ वर्ड। किसी भी वर्ड को सपोर्ट करने के लिए जब आपको वहां पे फील हो रहा है कि वहां पे आपकी बात मुकम्मल या वजन में नहीं आ रही, तो वहां पे हम आर्टिकल्स प्लेस करते हैं। अब देखा जाए तो एन का तो हमें पता है, एन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वॉवल्स का तो सबको पता है, वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, या कोई भी ऐसा लेटर इंग्लिश का वर्ड जिसकी आवाज अलिफ या आइन से बने, कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है, जैसे एम एन ए। अब ये एम एन ए, लेकिन शुरू तो एम से हो रहा है, आवाज एम, हम अलिफ से आवाज बना रहे हैं उसकी, एम एन ए, ऐसी है जी। तो ऐसे तमाम अल्फाज और आपके जो वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, हमेशा ये ग्रामर का रूल है, आपने हमेशा इन अल्फाज से पहले एन लगाना है। आपका जो आर्टिकल है वहां पे एन होगा। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज। आप इसके बगैर कोई भी जुमला बना लें, गलत बनेगा ही नहीं। आपकी लैंग्वेज का वो जो वजन है वो बराबर नहीं होगा, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकेगी। और अब रह गया बाकी ए। वॉवल्स का पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, हम इनको वॉवल्स बोलते हैं। और बाकी जो तमाम लेटर्स हैं एबीसी के, उनको हम कंसोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कंसोनेंट्स। उन कंसोनेंट्स के साथ हम ए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ए मैंडेटरी नहीं होता। ए आप ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि हर जगह आपने ए लगाना ही लगाना है। समटाइम्स ए इज नीडेड जब आप तादाद का जिक्र करते हैं। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, वहां पे आपने मेंशन किया कि एक किताब है, तब आपको ए लगाना वहां पे पड़ा। अदरवाइज जरूरी नहीं भी होता कि आप हर जगह पे ए लगाएं। तो कंसोनेंट्स के साथ मोस्टली ए ही प्लेस होता है और वॉवल्स के साथ आप एन प्लेस करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब आ जाते हैं हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट यानी कि ये यहाँ पे लगना ही लगना है, या ये जहां भी लगेगा उस वर्ड को, जिस लेटर के साथ लगेगा उसको ये खास बना देगा। ठीक है ना जी। और डेफिनेट आर्टिकल में आपका सिर्फ एक ही आर्टिकल है, दैट इज द, THE। दी भी बोलते हैं इसको, दा भी बोलते हैं, तो दा, इट्स बेसिकली द। ठीक है ना, THE ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। और ये हर उस इंपॉर्टेंट चीज के साथ प्लेस होगा जिसको या तो ग्रामर ने इंपॉर्टेंस दी है, जिसको आप इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। आप किसी चीज को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, द जंगल, ही वेंट इनटू द जंगल, द जंगल, वो जंगल में चला गया। आप उस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई वो जंगल में चला गया, ही वेंट इनटू द जंगल। ठीक है जी। आई सॉ कैन से द कैसल, मैंने किला देखा, आई सॉ द कैसल। तो मेरा मतलब है कहने का कि आप जो द आर्टिकल है ये हर उस खास नाउन, उर्दू में एक टर्म होती है इसमें नकरा और इसमें मारफा, शायद हमें पता हो। इसमें नकरा हर आम इसम के लिए, हर आम नाउन के लिए, लड़का, भाई दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, लड़की, कुर्सी, मेज, पंखा, ये आम चीजें हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस क्लास की बात करें तो मोइज, इस क्लास में मोइज सिर्फ एक है, बिलाल एक है, शराफत एक है, साद एक है। तो आप लोग हैं इसमें मारफा, खास इसम है। तो हर उस खास इसम के साथ, हर उस प्रॉपर नाउन के साथ, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, हर उस प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है जी। हर उस प्रॉपर आर्टिकल के साथ आप आर्टिकल दा इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ भी मैं बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को ही खास करते जाएं, हर चीज़ को ही इंपॉर्टेंट बनाते जाएं। इसकी भी एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह विल गेट टू नो अबाउट दिस प्रैक्टिस। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी की कोई क्यूरी रिगार्डिंग, ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, आपको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल ठीक है सरताज ने, बिल्कुल ठीक लिखा है सरताज अहमद साहब ने। ओके गाइस, आप ऐसा कीजिए, अब ये जो टेस्ट है ना आपके, ये इनके पीछे ना मुझे एटलीस्ट 10 to 15 लाइंस अपनी पसंद का कोई भी ऐसे लिख के दे दे, ठीक है ना। ऐसे आज आपकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह, और आज पहला लेक्चर भी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल से इंशाल्लाह का हम प्रॉपर लेक्चर्स ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे आज आपकी ना जरा बेसिक्स पता चलते हैं। जिस का टेस्ट है ना, ये फिर मैं मुकम्मल अभी आपको चेक करके दूँगा। आपकी पसंद का, आपकी कंफर्ट का कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसमें आपको लगेगा यार मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या बेस है, कितना नॉलेज, कितना स्किल हमारे पास है। झिझकना कुछ नहीं है, जो पता है, जितना पता है, जैसा पता है आप वो बता सकते हैं, ठीक है जी। लिखना 15 लाइन्स में भी हार्डली इस पेज पे आ जाए, कोई भी टॉपिक, एनी फेवरेट टॉपिक जिसमें आपको पता है यार मुझे ये बड़ा अच्छे से आता है, सो दैट आई वुड हैव एन आइडिया ऑफ योर स्किल्स। अच्छा जी, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज करता जाऊँ, इस आर्टिकल को, इस आज की क्लास को, प्रेजेंटेशन को, कि आप लोगों ने अपनी आज से जो पहली प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को भी मैं ये बताऊंगा कि आपने आज से वोकैब बिल्ड करना स्टार्ट करनी है। एक सेपरेट डेडिकेटेड रजिस्टर होगा हमारे पास, ठीक है। इट शुड बी इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, नॉट वर्टिकल फॉर्म, इट शुड बी इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ठीक है। उसमें हम कॉलम्स ऐड करेंगे, उसमें 5 वर्ड्स अ डे, रोजाना के 5 वर्ड्स हम यहाँ पे लेकर आएंगे। दे शुड बी न्यू, आगे उनके मीनिंग्स होंगे, उनकी कॉलोकेशन होगी, आपको गूगल सब कुछ बता देगा। व्हेन यू सर्च अ वर्ड इन गूगल, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और दैट वर्ड, लाइक एक वर्ड है फेस्टिडियस, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फेस्टिडियस इज अ वर्ड और इट्स बेसिकली एन एडजेक्टिव, ये एक क्वालिटी है, किसी भी शख्स की क्वालिटी हो सकती है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है, अटेंटिव है। लाइक आई कैन बी फेस्टिडियस अबाउट माई क्लास, मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास की चेयर्स की अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसी हो, बहुत नीट एंड क्लीन हो, ये एलसीडी ऐसे ही पड़ी हो, ये रिंग लाइट ऐसे ही लगी हो, तो मैं हर चीज को एक उसकी परफेक्ट कंडीशन में देखना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली देखना चाहता हूँ, वो जैसी है वो वैसे ही लगे। उसको कहते हैं बीइंग फेस्टिडियस, ये एक क्वालिटी है किसान की। हम आम अल्फाज में कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा ना, क्या कह सकते हैं कि कंसर्न है। पंजाबी में कहते हैं बहुत वहमी है कि वो ये चीज अगर ऐसी नहीं पड़ी तो ये ऐसी क्यों नहीं पड़ी, क्यों जी। तो इसको, दिस इज अ क्वालिटी, इट्स बेसिकली एन एडजेक्टिव, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा, फेस्टिडियस। और मीनिंग में आपको बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना, कंसर्न होना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परवाह करना, ठीक है ना। तो आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वोकैब अरेंज करनी है, ठीक है, 5 वर्ड्स डेली बेस्ड, और आगे उनकी मीनिंग, उनकी कोलोकेशन, और कम से कम 2 सिनोनिम्स तो जरूर कीजिएगा, 2 सिनोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। जो आप नया वर्ड लेकर आएंगे उसके 2 सिनोनिम्स आपने जरूर लिखने, और आगे एक उसका जुमला, एक सेंटेंस भी बनाना है आपने, साथ ही उसको आपने रिप्रोड्यूस भी करना है। सिनोनिम्स के बारे में एक चीज मैं और ऐड करता चलूं, 2 तरह के सिनोनिम्स होते हैं,
ये मैं आपको सारी बातें ब्रिटिश काउंसिल की बता रहा हूँ जो कि आइल्स वालों को बताई जाती है, लेकिन जो कि बेसिक्स हैं आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं आपके इस कोर्स में ऐड करता जा रहा हूँ कि 2 तरह के सिनोनिम्स होते हैं। आज से पहले हमें नहीं पता था कि सिनोनिम्स 2 तरह के भी होते हैं, कि हमें तो ये पता था कि सिनोनिम्स होते हैं जो जिनके मीनिंग सेम हो और वो कोई भी वर्ड हो सकता है। ग्रामर की जो रूह है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ग्रामर डज नॉट एक्सेप्ट। एक होता है जी डायरेक्ट सिनोनिम, एक होता है लूज सिनोनिम। अब नाम से आपको आइडिया हो गया होगा, डायरेक्ट सिनोनिम वो सिनोनिम है जिसका मीनिंग उस वर्ड के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है, बहुत करीब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिपेयर और फिक्स, बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी गुड। किसी भी हम लेडी को हम फीमेल कह सकते हैं, हम मेल को मैन कह सकते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट को हम प्यूपल कह सकते हैं, ग्रेजुएट कह सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कह सकते हैं। ये है डायरेक्ट सिनोनिम्स कि हमें उनको बदलने से हमारा जो थीम है, हमारी जो बात है वो नहीं बदली। एक है लूज सिनोनिम। अब अगर मैं लूज सिनोनिम की बात करूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मोबाइल का सिनोनिम मैं गैजेट नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से गैजेट, क्योंकि गैजेट्स में तो यहां पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो गैजेट्स में काउंट होती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि आजकल हमारे इस्तेमाल में है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली, सोशल मीडिया से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी गैजेट्स हैं। एक गैजेट आपके सामने ये है, एक गैजेट ये भी है, एक गैजेट ये भी है, एक गैजेट वो भी है। तो दीज ऑल आर गैजेट्स। लेकिन मैं अगर सिर्फ मोबाइल की जगह गैजेट का वर्ड यूज करूँ तो दैट विल नॉट बी करेक्ट, वो करेक्ट नहीं होगा, वो लूज सिनोनिम होगा। गैजेट्स में आता जरूर है आपका मोबाइल, लेकिन मैं उसको एज अ डायरेक्ट सिनोनिम यूज नहीं कर सकूंगा। लिहाजा जब मैं मोबाइल की जगह वर्ड गैजेट यूज करूंगा तो जो सेंटेंस मैंने लिखा होगा, जो बात मैंने की होगी, वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट होगी, ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं होगी। तो समझ आ गई जी। जो सिनोनिम्स आप एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डायरेक्ट सिनोनिम्स होने चाहिए। देयर शुड बी 2 डायरेक्ट सिनोनिम्स। कम से कम एक तो मस्ट कीजिएगा, 2 ना भी मिले तो एक ऐसा जरूर लिखिएगा जिसके मीनिंग आपके बहुत क्लोज हो। ठीक है जी। नाउ यू मे प्रोसीड विद योर टेस्ट प्लीज। Any of your favorite topic, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने की, कुछ नया बिल्ड करने की। I just want to know the basic, you can say, skill that you have, the basic knowledge of that particular company, so that I could identify your level and फिर हम वहाँ से proceed करेंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, I will ask everybody to write me few lines, मेरी 5 से 10 लाइनें आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप लिख सकें तो मैं आपको इधर ही असेस करूं इंशाल्लाह। So those who have joined this class so far, आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आप भी write me few lines so that I could assess your basic grammar level.